So very good morning to my dear students. As we have started the chapter environment, so today we are going to continue with the natural environment. Yesterday we studied the meaning of environment, components of environment. So today we are going to start with the natural environment. In natural environment, we are going to study about the 4 major domains of the earth. जो हमने कल भी आपने बताए थे, ठीक है. Just write down once again in the chat box which are the 4 major domains of the earth. Hurry up. Manya has written atmosphere, lithosphere, hydrosphere. Okay, one domain is left, biosphere. Okay, so today we are going to continue with these 4 domains. जो हमारा जो natural environment है जिसमें हमारे biotic and abiotic दोनों components होते हैं, so we are going to do that. एंड इन 6th क्लास हमने इस डोमेन्स को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है. वी हैव ऑलरेडी डन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, बायोस्फीयर, ये हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया हुआ है. ठीक है. सो इज देयर एनीवन हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द लिथोस्फीयर? आई वांट योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस चैप्टर आल्सो. ओके, मान्या. Ma'am, lithosphere is made up of Earth's solid crust, the land. Okay, very good. Okay, Sahajveer, if you want to add something in that. It is the top layer of the earth. Okay. It also has ocean floors. Okay, continent and ocean floor. ठीक है. Lithosphere is comprises of continent and the ocean floor also, and it is made up of rocks, minerals and thin layer of soil. मतलब जो हमारा लिथोस्फीयर है, जो हम क्रस्ट के अंदर इसको कवर करते हैं, सॉलिड क्रस्ट जो है अर्थ की, जो हार्ड टॉप है, it is generally made up of rocks, minerals and a thin layer of soil. ओके. नाउ अब हम जा रहा जो ये लिथोस्फीयर है, यहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ओशियंस भी हैं. सो वी आर हैविंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आल्सो, ओशियनिक फ्लोर, जो ओशियन का जो बेस होता है, ओशियन फ्लोर, इसको भी हम लिथोस्फीयर का ही पार्ट मानते हैं. नाउ इन योर बुक यहाँ पे वन क्वेश्चन इज देयर. जस्ट लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट of uses that land in your neighborhood is being put in. कि आपके जो सराउंडिंग में, जो नेबरहुड में है, लैंड किस किस के लिए यूज की गई है. साहिब जोधा रिटन लैंड फॉर एग्रीकल्चर. ओके, वेरी गुड. ठीक है. और किस पर्पस के लिए यूज होती है लैंड? आपके घर के आसपास देखो, नेबरहुड में फार्मिंग, बिल्डिंग हाउसेस. वेरी गुड. फॉर मेकिंग पार्क्स, shops. Very good answer. Very good, Araveer, Gurnoor. Very good. Shops to make houses, settlements, buildings. Okay. So जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड हमारा जो एक सॉलिड पोर्शन है जहां पे हम बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, गार्डन्स भी देखने को मिलते हैं, पार्क्स भी हैं. सो जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, एग्रीकल्चर वर्क है, that we can do on the hard surface, जिसको हम लिथोस्फीयर के अंदर कवर करते हैं. Now the second major domain is hydrosphere, that deals with water. So in hydrosphere we find water in all forms. What do you mean by this? In hydrosphere we find water in all forms. Let me ask. Don't write in the chat box. Let me ask. Okay. Tanveer Singh Binning. Trisha. Ma'am, rivers, lakes, oceans, ma'am, in this form. Can you tell me which are the 3 forms of water जो आप साइंस में करते हो, that water find in 3 forms? Trisha. Ma'am, yes. Which 3 forms? Ma'am, like rivers वगैरह नहीं है? नहीं, वो तो है, पर जो हमारा एक न, लेट मी आस्क आयुष तिवारी. आयुष. Yes, ma'am.
Yes, can you give the answer? 3 forms कौन सी हैं water की? Solid, liquid, gas. Solid, liquid or gas. And when we are talking about water in hydrosphere, we find water in all these 3 forms. लिक्विड फॉर्म में जो त्रिशा ने बताया, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, लेक्स हैं, Yes. तो इसमें लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और जब हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो वहां पे आइस की फॉर्म में है, और जब हम वेपर्स की बात करते हैं इन एटमॉस्फेयर, तो वहां पे वो वेपर की फॉर्म में है। सो वी फाइंड वाटर इन हाइड्रोस्फीयर इन दीज 3 फॉर्म्स। इन तीनों फॉर्म्स में हमें जो पानी वहां हमारे हाइड्रोस्फीयर में मिलता है। एंड we use water for various purposes. Day to day life में we use water in various purposes. अब ये हम छोटे होते से करते जा रहे हैं, है ना। And we also studied कि we somewhere how we are wasting the water. Okay, just write down in the chat box how we are wasting the water. हमें uses पता है ना। तो in what ways we are wasting the water? Wasting the water. Hurry up, waiting for your answers. Okay, leaking taps, washing cars. If we are not using the bucket to wash them while brushing, open the taps. Okay, when we are not closing the taps properly. Okay, very good. Anything else? And somewhere how जो हमारे घरों में एक्वागार्ड लगे हुए हैं, तो जो एक्वागार्ड में से भी पानी निकलता है ना, तो दैट वाटर हम कहीं पे अगर यूज में नहीं ला रहे, वी कैन रीयूज दैट वाटर, ठीक है। ओके, वॉशिंग फ्लोर्स, वेरी गुड, ठीक है। तो समवेयर हाउ वी आर ऑल्सो वेस्टिंग द वाटर, ये हमने 6th में भी पढ़ा था कि बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर। कहीं ना कहीं हम वाटर को पोल्यूट भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज है, वो भी इसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हम हाउस होल्ड पर्पसेस हैं वहां पे भी वाटर को हम ठीक ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। so we are wasting the water and which is one of the precious source नेचर ने हमें ये प्रोवाइड किया है, but somewhere how we are wasting the water. So it is about the hydrosphere. Now the next is atmosphere. Who is going to tell me what do you mean by atmosphere? What do you mean by atmosphere? Those who know the answer raise hand. Angel Sahadev. Angel Sahadev. Ma'am, the layer of atmosphere. Your voice is not audible. Okay, Ritika, you just tell me. Ritika. Ritika. Atmosphere is the thin layer of air around That Earth. surrounds the earth. Very good. Thin layer of the air that surrounds the earth is called atmosphere. Now, who is going to tell me composition of air? Composition. Composition. Ankit. Ankit. Ma'am, I have to tell about atmosphere, na? Yes, beta. I am asking composition. Composition of air, that is 71%. No. 79%, 78% of nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases, which include carbon dioxide, methane, argon, etc. etc. So, अंकित ने हमें बताया composition 78% of nitrogen, ठीक है, 21% of oxygen and 1% of other gases. Other gases में who is going to tell me the percentage of carbon dioxide? That is also important. Carbon dioxide की percentage. Arav Jaswal. Arav. Ma'am, please repeat the question. Beta, percentage of carbon dioxide in air? Ma'am, 1%. No, it's not 1%. Gurnur. Gurnur. Ma'am, 6%. No, it's 0.03%. 0.03%.
बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है, पर डे बाय डे इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज द थिन लेयर ऑफ एयर, और जो भी इसकी कंपोजिशन है, वी टॉक्ड अबाउट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। देन this atmosphere also protect us from the harmful rays of the sun. कैसे प्रोटेक्ट करता है? How this protect us from the harmful rays of the sun? आदित्य विशिष्ट, आदित्य, आदित्य, Atmosphere is consist of ozone layer which protect us from harmful UV rays of sun. yes, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर है दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। वेरी गुड। और अब टाइम टू जो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण हमारे वेदर में, क्लाइमेट में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो जब भी हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की तो देयर इज मतलब जब भी हम मोस्टली इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड्स का सिचुएशन हो रही है, ग्लेशियर की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, सीजन्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट। और इसमें जो लास्ट डोमेन रह गया है दैट इज बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर क्या है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेरी गुड रंजीता, यू हैव रिटन नैरो जोन ऑफ एयर वाटर लैंड मीट्स, जहां पे हमारे को, क्योंकि लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करेगी? वेयर वी आर हैविंग लैंड टू लिव, एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक। सो लाइफ एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। इट इज अ नैरो जोन वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर मीट, इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। सो दीज आर द 4 मेजर डोमेन, और इसको हम किसके अंडर कवर कर रहे हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में, जो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू कवर। so far we discussed about the natural environment, हमने environment का मतलब भी पढ़ा, so whatever we see in our surroundings. But when we talk about ecosystem, it means the interdependence of living organisms with each other or living organisms with the abiotic domain and how they are interdepending on each other. तो इसकी जब हम बात करते हैं that comes under the ecosystem. तो जब ये इकोसिस्टम का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें एक छोटा सा उन्होंने एक स्टोरी, एक इंसिडेंट बताया गया है कि एट एन एनसीसी कैंप रवि वाज अटेंडिंग दैट क्लास। तो उसमें से एक बच्चा था जेसी, तो उसने कहा कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और ये जो बारिश है मुझे क्या चीज की रिमाइंड करवा रही है? माई होम इन केरला, कि केरला में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा, और वहां पे हर जगह बहुत ही अबंडेंस में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में ग्रीन फील्ड्स हैं, कोकोनट प्लांटेशंस हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट है एनसीसी कैंप का, ठीक है। उस तरफ दूसरी तरफ एक और बच्चा है हीरा, एंड दैट वो कहाँ से है? ही बिलोंग टू जैसलमेर। तो उसने कहा कि जहां मेरा एरिया है वहां इतनी ज्यादा रेन नहीं होती, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? सैंड। प्लांट्स कैसे होंगे? कीकर, कैक्टस, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली सीन एनिमल है वहां पे वो क्या है? कैमल्स। बट अलोंग विद द कैमल्स वहां पे आपको और भी एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट डेजर्ट, सो इट्स नॉट ओनली कैमल्स, वी कैन सी स्नेक्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब चीजें हमें वहां पे देखने को मिल जाती हैं। तो अब जो रवि है ये दोनों की बातें सुन रहा है, जैसे की बात भी सुनी और हीरा की बात भी सुनी। तो उसने कहा कि जो ये वेजिटेशन है, जो ये एनिमल्स हैं या जो ये लोग हैं, हर जगह पे वेरी करते हैं। केरला में जो लोग हैं या वेजिटेशन है या वहाँ की एनिमल लाइफ है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस जैसलमेर। मतलब अगर आप बात करो डेजर्ट में, द एंड पीपल दोज हु आर लिविंग इन डेजर्ट, या एनिमल्स हैं या प्लांट लाइफ है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेन। द माउंटेन पे जो लोग रहेंगे, माउंटेन पे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, एनिमल्स होंगे, दैट आर टोटली डिफरेंट। If you can just take the example of the sea coast,
ठीक है। जो सी कोस्ट वाले एरियाज हैं वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट डेजर्ट, तो डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, टाइप ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो वेरी मच डिफरेंट। ठीक है। सो जो भी हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, दे आर डिपेंड अपॉन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जो उनके सराउंडिंग जैसी होंगी। ठीक है। और पता है कि जो स्नेक्स हैं, कैमल्स हैं या फिर लीजर्ड्स हैं, ये डेजर्ट में अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, चेंज ले आते हैं। एंड एवरी वन ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड है, एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट है। सो जो ये रिलेशन है, दैट रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the relation between the organisms and their surroundings form the ecosystem। मतलब environment क्या है? whatever we see in our surroundings, जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, पर जब हम इनके रिलेशन की बात करते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, दैट कम्स अंडर द इकोसिस्टम। ये एक दूसरे से कैसे डिपेंड है, एक दूसरे पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड कर रही है, या नॉन लिविंग पे कैसे डिपेंड कर रही हैं। अब जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको लैंड भी चाहिए, इनको वाटर भी चाहिए, दे नीड एयर। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड वो कहाँ से मिल रही है? एयर से। तो इट मीन्स दे आर डिपेंडिंग अपॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑल्सो। ठीक है। सो दे आर जस्ट हैविंग डिपेंडेंस ऑन ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। तो इसे हम क्या देते हैं? इकोसिस्टम। दैट इज इकोसिस्टम। और हर एरिया का जो इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर आपकी बुक में बात की जाए तो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ रेन फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम होगा, डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम होगा, माउंटेन्स का अलग इकोसिस्टम होगा। ठीक है। सो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम फॉर ईच एंड एवरी एरिया, लेक का, रिवर का, ओशन का, माउंटेन्स का, आइलैंड्स का, कोस्टल एरियाज का, सो इवन अ स्मॉल पोन्ड। उसी तरह जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे बात की थी प्लेग्राउंड की, तो उस प्लेग्राउंड में भी अलग इकोसिस्टम होगा। ठीक है। सो मेन मतलब इसमें जो इकोसिस्टम का जो मतलब है, दैट इज रिलेशन between the living organism as well as relation with the organism and their surroundings के साथ जो interaction है, interdependence है, that forms the ecosystem। अब आपके इसी पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डू यू नो है कि on 5th June every year the World Environment Day is celebrated। ठीक है। You can learn this and keep remember this all these things। So there is need to conserve our environment। And why there is need to conserve our environment? Because being a human being हम environment को अपनी needs के according change करते रहते हैं। So there is need to conserve that। That's why every year we observe World Environment Day on June 5। Okay।